So students, welcome back. I hope you had completed your holiday homework. If still not, please complete your holiday homework because this chapter is very important chapter and you will suffer throughout your life if you are not going to study this chapter. So please don't skip anything from this chapter. So let's come back to the chapter. Students, till now we have learned that states of body can be of two types in terms of physics. मीन्स कि फिजिक्स में आप बॉडी की स्टेट को दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक स्टेट ऑफ रेस्ट और एक स्टेट ऑफ मोशन. सो आप सभी को पता है कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में कब कहलाएगी स्टूडेंट्स, जब बॉडी अपनी पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से चेंज कर रही होगी तो वो बॉडी आपकी मोशन में कहलाएगी. और अगर बॉडी की पोजीशन अपने रेफरेंस पॉइंट के रिलेशन में चेंज नहीं होती है तो बॉडी आपकी स्टेट ऑफ रेस्ट में कहलाएगी. तो देयर आर टू स्टेट्स ऑफ बॉडी, that is one state of rest and second state of motion. अब स्टूडेंट आपको स्टडी करना है मोशन और आपके कोर्स में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन. स्टूडेंट आपको बताया था कि मोशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, बेसिकली इन टू टाइप्स, बट इट इज classified some more types of motion. But in your course there is only motion of a straight line body. So straight line motion can only be classified into two types of motion. That is one uniform motion in which body travels equal distance in equal interval of time. Now students, second type of motion is non-uniform motion in which you have learned unequal distance is traveled by body in equal interval of time. So students, you need to remember that time interval is equal and time interval means 1 second. Time interval means time difference of 1 second between two observations, or time interval between 2 points is called time interval. So students, you need to remember that time interval is a time between 2 points which you are going to observe. या आप ये कह सकते हैं किसी दो ऑब्जर्वेशन या आप जो चीज देख रहे हैं किसी दो घटना के बीच में लगने वाला जो टाइम है वो आपका टाइम इंटरवल होता है. और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हम कार को देख रहे हैं कि कार हमारी कैसे मोशन कर रही है या उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है किसी भी दो इक्वल टाइम इंटरवल के बीच में. और टाइम इंटरवल हमारा स्टूडेंट हो सकता है 1 सेकेंड का भी हो सकता है, 2 सेकेंड का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, जितने सेकेंड का आप टाइम इंटरवल कंसीडर करना चाहें. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, आपको मोशन को क्लासिफाई करने के लिए, मोशन में डिफरेंस समझाने के लिए हमने टाइम इंटरवल जो लिया है वो 2 सेकेंड का, मीन्स 2 सेकेंड टाइम इंटरवल हैज बीन कंसिडर्ड. एंड एज पर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. सो लेट्स check the motion of a car which is shown above.
see, we have taken time interval from 0 to 2 second, means 2 second time interval we have considered. Now again next time interval start from 2 to 4, another 2 second time interval start from 4 to 6, then another 2 second time interval 6 to 8. So student, in this diagram you can see that car travels 2 meter distance in 2 seconds. Then again it travels 2 meter distance in another 2 seconds. Then again it travels another 2 meter in another 2 seconds. So you observe that car is traveling equal distance in equal interval of time. So this type of motion is uniform motion. And now you observe the second motion, non-uniform motion, which is shown below the timeline. So see the difference. The car, now student, please note the diagram below timeline. Here we again considered time interval of 2 seconds, but we notice one thing, that car is traveling some random or unequal distance in equal interval of time. Means let us consider 0 to 2 1 time interval, meaning time interval of 2 seconds. Here car travels 2 meter, but you can notice in next time interval, that is 2 to 4, or you can say time interval of 2 seconds, a car has traveled 5 मीटर. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वल टाइम इंटरवल है, 2-2 सेकेंड्स के, मीन 2 सेकेंड्स ईच टाइम इंटरवल. 0 to 2 2 second time interval, 2 to 4 2 second time interval, 4 to 6 another time interval of 2 seconds, 6 to 8 another time interval of 2 seconds. So now you see that when we consider equal time interval of 2 seconds, the car is traveling unequal distance. In first it has traveled 2 meter, then next time interval there of 2 seconds it has traveled 5 meter, and another time interval of 2 seconds it has traveled 3 meter, then another 2 seconds 4 meter, and another 2 seconds 3 meter. So now you notice that car is not traveling equal distance, but time interval remains the same, मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल. तो आप देख पा रहे हैं कि कार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो हर टाइम इंटरवल जो हमने 2 सेकेंड के लिए वो अनइक्वल है. मीन्स जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कार के द्वारा वो आपका है अनइक्वल है हर 2 सेकेंड बाद. तो आप देखिए इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर वाले डायग्राम को देखते हैं तो आप देख रहे हैं हर 1 सेकेंड बाद कार 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो टाइम है, आफ्टर ईच 1 सेकेंड कार हैज ट्रेवल्ड 1 मीटर एंड कार इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मीन्स कि देखिए अब हम यहाँ पे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट ग्राफ का यूज क्या होता है सबसे पहले आपको समझना होगा. तो स्टूडेंट देखिए ग्राफ का यूज जो होता है डिस्टेंस को या मोशन को बार बार समझाने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है. एंड और आपको पता है कि ग्राफ जो होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है, या आप ये कह सकते हैं लार्ज डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड ग्राफ. तो
तो जब आपको पता है लार्ज डेटा मतलब कि एक छोटी सी पिक्चर से हम लार्ज इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, हमें मोशन कैसा है वो हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट ग्राफ में देखिए, हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि डिस्टेंस और टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ पे और आपको एक चीज़ और पता है कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी ट्रेवल्स। तो देखिए स्टूडेंट ग्राफ में क्या है, यहाँ पे देखिए ग्राफ क्या शो कर रहा है। हम लोग वाई एक्सिस में डिस्टेंस को शो करते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम को शो करते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल लिया है और कार हमारी हर बार 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये आप देख पा रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का कंसिडर कर रहे हैं तो कार ने यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखिए, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखें 1 to 2 तक, तो आप देख रहे हैं 1 to 2 तक जाने में डिस्टेंस ने सिर्फ 1 से 2 ही गई है, मतलब 1 किलोमीटर से नेक्स्ट 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो मतलब कार ने 1 से 2 सेकेंड के बीच में केवल 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है। मतलब 1 किलोमीटर पर तो पहले से ही थी, अब उसने 1 और किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो आप देख पा रहे हैं हर सेकंड के टाइम इंटरवल पे जो हमारी कार है वो 1 किलोमीटर और ट्रेवल कर रही है। तो आप देख पा रहे हैं हर बार जो हमारी कार है वो 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और आफ्टर ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और अगर सिर्फ आपको स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाना हो तो स्टूडेंट आपका इस तरीके से कुछ बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितने टाइम इंटरवल में हमारी कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। तो इसका मतलब क्या है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो डिस्टेंस कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है और कहीं पे कम भी हो सकता है। तो आप इस ग्राफ में कंसिडर करें तो देखिए डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं और टाइम हम एक्स एक्सिस में शो कर रहे हैं। अब अगर आप कंसिडर करें तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक सपोज कि 1 आवर के टाइम में हमारी कार ने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर डिस्टेंस, लेकिन अनदर 1 आवर में आप देख रहे हैं हमारी कार ने 1 से 3 किलोमीटर पहुंच गई। मतलब अब जो अनदर टाइम इंटरवल है जो 1 आवर का जो टाइम इंटरवल है नेक्स्ट पे, मतलब पहले 1 आवर के टाइम इंटरवल हमारी कार ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल किया था। अब नेक्स्ट 1 आवर में कार ने हमारे ट्रेवल कर लिया है अनदर 2 किलोमीटर, मतलब अब यहाँ 2 किलोमीटर चल गई। तो अब आप देख पा रहे हैं 0 से 1 के बीच में 1 किलोमीटर और 1 से 2 के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो हमारा अगर इस तरीके कोई रैंडम ग्राफ बनता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान देंगे कि ये जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए इस टाइप का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है जो कि किसी एंगल पे एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड होता है। और अगर इस तरीके कोई रैंडम टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनता है और वो ग्राफ आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है अगर, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। अब स्टूडेंट आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो हमने यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ इतना कंसिडर किया है
कि हमारी बॉडी कभी भी कितना भी डिस्टेंस या तो बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके दो टाइप के मोशन कोर्स में है, जो कि यूनिफॉर्म, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके दो टाइप के मोशंस कोर्स में हैं, जिसमें पहला है मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा मोशन है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आपको फिर से याद करना होगा, दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो स्टूडेंट अब हम लोग आ जाते हैं अपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में। अब स्टूडेंट आपको हमने पहले बताया था कि अगर हम अपनी बॉडी, या आप सपोज के यहाँ से डायग्राम को देखते हुए, एक बॉल है जिसको हम किसी स्लोप पे, एक रेगुलर स्लोप पे अगर अप साइड से डाउनवर्ड की तरफ थोड़ा सा पुश करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा बॉल की शुरू में स्पीड 0 होती है, फिर बॉल की स्पीड कुछ बढ़ती है, फिर कुछ टाइम बाद कुछ और बढ़ जाती है, फिर कुछ टाइम बाद कुछ और बढ़ जाती है, तो एट लास्ट जाके बहुत ज़्यादा हो जाती है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स इस डायग्राम में, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने अपनी बॉडी या बॉल को अपवर्ड स्लोप, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ धकेला है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने सेकंड में क्या किया है, अपनी बॉल को नीचे स्लोप से ऊपर की ओर धक्का दिया है। तो आप देख पा रहे हैं इस टाइप के दोनों चार्ट्स, दोनों पिक्चर्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ से बॉल को धक्का दिया है और यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर धक्का दिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बॉडी पहले हमारी 0 वेलोसिटी थी, और आपको पता है अगर हम ऊपर से किसी भी बॉल को थोड़ा सा पुश करके छोड़ देते हैं, तो वो जो हमारी बॉल है कुछ टाइम बाद, मतलब आफ्टर कुछ 1 सेकेंड कह लीजिए, बॉडी की वेलोसिटी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसके बाद आफ्टर अनदर 1 सेकेंड, या आप कहें आफ्टर टोटल टाइम 2 सेकेंड, बॉडी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब अनदर 1 सेकेंड बाद अगर बोलें, बॉडी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई। अनदर 1 सेकेंड बाद 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। अनदर 1 सेकेंड बाद 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड टाइम है, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड टाइम है। और स्टूडेंट आपको पता है कि हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सटेटेड मोशन का मतलब है कि हमारी बॉडी की वेलोसिटी हर एक टाइम इंटरवल बाद, मतलब हर एक इक्वल टाइम इंटरवल बाद इक्वल अमाउंट से बढ़ जाती है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लिया बॉडी ने, तो 2 मीटर हो गई, मतलब 0 से 2 मीटर हो गई, तो 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ गई। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी आती है तो यहाँ 4 हो जाती है और पहले 2 थी। तो अब यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 1 सेकेंड लगा, तो बॉडी की वेलोसिटी अब कितने से बढ़ गई, फिर से 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ गई। तो आप देख पा रहे हैं हर 1 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हमारी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रही है, और एट लास्ट आप देख रहे हैं कि बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लग जाती है। तो आप देख रहे हैं हमारी बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, और हर टाइम इंटरवल, मतलब बात कहने मतलब कि हर इक्वल टाइम इंटरवल बाद बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ जाती है। तो जब हमारी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ जाती है, वेलोसिटी बढ़ती है स्टूडेंट्स इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्टूडेंट आपको इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए।
तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब हमारी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से बढ़ जाती है तो वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन होता है। और अगर यही जस्ट अपोजिट होता है, हमारी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हो जाती है, तो वो आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होता है। तो स्टूडेंट, और ये कब पॉसिबल है? जब आप देखें अपनी बॉल को हम नीचे, आपने नोटिस किया होगा कभी खेलते हुए कि जब आप बॉल को किसी स्लोप से या ढलान से, मतलब ढलान के नीचे की ओर से ऊपर की ओर पुश करते हैं, तो बॉडी की जो नीचे की तरफ स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते, देखिए स्टूडेंट, जब हमने बॉल को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किया है तो हमारी बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे जाके आप देख रहे हैं, आपको सही पता है वेलोसिटी क्या होगी, कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉल अब ऊपर की ओर जा रही है ढलान के। तो अब बॉडी की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, उसके बाद 6 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके बाद 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकेंड टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। तो आपने देखा बॉल को जितनी बार भी हमने देखा तो हमारा टाइम का जो अंतर था वो था आपका 1 सेकेंड। तो जितनी बार हमने बॉल को देखा, या आप कह सकते हैं जितने टाइम के अंतर बाद देखा, वो आपका टाइम इंटरवल है। और यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड। और आप देख रहे हैं हर 1 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो जा रही है। तो इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। और आप देख रहे हैं हर बार बॉडी की वेलोसिटी है जो इक्वल अमाउंट से कम हो रही है, मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब जो रिटार्डेशन है, जो मतलब वेलोसिटी कम होने की जो रेट है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। मतलब हर बार बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाती है। तो आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला जो मोशन है आपका वो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी हर बार बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। और नीचे वाला है आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। क्यों? क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी हर बार कम हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो स्टूडेंट, आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर रिटार्डेशन की वैल्यू सेम है 2 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी कम हो रही है। और यहाँ एक्सलेशन की वैल्यू सेम है 2 मीटर पर सेकेंड, बट हर टाइम इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है और यहाँ पे घट रही है। तो जब बॉडी की वेलोसिटी हर बार इक्वल अमाउंट से बढ़ रही होती है तो यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन होता है। जब बॉडी की वेलोसिटी हर बार इक्वल टाइम इंटरवल से कम हो रही होती है तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको जैसे पढ़ना है ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का। तो आपको ये ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।